date. He has visited Elettra, Synchrotron, Trieste, Italy, National Synchrotron Radiation Center, Hinchu, Taiwan, and many other countries for academic assignments. He has developed MSc Physics program and designed its curriculum at Royal University of Phnom Penh, Cambodia. He has published more than 150 research papers in journals for international repute and many books. He has been receiver in many international journals with publication elsewhere, Springer, Ville, World Scientific, and Royal Society of Chemistry. He has completed many major research projects for the DST, New Delhi, UGC, New Delhi, BRNS, DAE, Mumbai, etc. Um, the today's topic of the webinar is conference, seminar, symposium, and workshop. The mode of communication will be Hindi and English both, sir. I welcome you. Thank you, sir. Thank you for my introduction, Divya Sharma. Good morning, all students. So today we are going to discuss about the conference, seminar, and workshops. What are Good those? And yeah, good morning. So I am sharing my PPT. Yes, If sir. if it is visible and you are able to see, please say yes. Sometime it is not available. Yes. No, sir. No, sir. Visible. It is visible. Visible. It's Visible, not sir. visible. Okay. Yes, visible. Yes, sir. Now Yes, sir, it visible. is In visible. Google Meet, sometimes it is difficult that the slides are moving. So if it is not moving, just let me know. Okay, you are the student of PhD now and completing your coursework. After this coursework, you have to appear in the coursework examination, and after passing that examination, you will be authorized to conduct your PhD. So today we are going to discuss about the conference, seminar, and workshop. A little bit overview I am going to provide you here, and how you are going to present your talk and poster presentation related details I am going to discuss in this presentation. So as all of you have my introduction that myself, Dr. Saurabh Dalila, I am working with the Department of Pure and Applied Physics, University of Kota. And our department you can see in the picture on the left hand side of this slide. So this is Nagarjun Bhavan in University of Kota. Some of you who are working in the chemistry and physics field, they have to visit this department. Physics department and chemistry departments are the biggest department of this university, as well as we have produced so many number of PhDs, and our students are working with IITs, ISRs, even in ISC. So coming to the presentation, first of all, these are the contents of this presentation. I hope slide is changed. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So first of all, I am going to introduce what is the importance of conference, seminar, workshop, and how they are important to us, purpose, types, and their definitions. And the differences in between these three components, as well as one more component is there, that is symposium, that I am not going to discuss here. Then various agencies for funding, pros and cons of professional events. But main component that you are interested in is presentations in conference, seminar, and workshop. Because as a research scholar, you have to present your work at various places in national and international repute. So coming to the conference, its purpose, planning, and types. Doing anything with a group of other people is the most effective approach to deciding on an issue, finding a solution to a problem, or learning something new. So that's why we participate in the conference. However, it is mandatory for research scholars nowadays to at least have 2 conference presentation, and at least they must have 2 journal publication to have their
PhD degree awarded. So we have to attend 2 conferences minimum, and we have to present our work that we are going to made in our coming research. So in this approach, when we are going to discuss about our work to group of people, we have variety of thoughts, ideas, and perspectives to go around to choose the most effective method to deal with our problem. So whatever work is given to you, that you have to plan. So initially, first, if we are going to discuss about the conference, it is derived from the Latin word that means bring together, conferre. So conference is a large meeting, and in this conference we are available to have consultation with the renowned expert of our field. With them we can exchange information, and it is usually large, and it is an official debate that is held amongst individuals who have common interest and who are typically working together to achieve a common objective. This discussion may include dialogues about the numerous pathways that may be followed to attain their objectives and express their diverse opinions. With these interactions, we can gain some knowledge that what kind of work we should make in our coming chapter, because we have to prepare work for the 3 chapters of the thesis. Symposium is also a meeting. It is a small type of conference. In conference, gathering of people more than 100 is available. In symposium, the gathering of the people is limited to 70, 80 or smaller. So it is also a meeting at which experts have discussion about the particular subject. It is a small conference. Okay, so I am not going to discuss this conference. If you are going to have an opportunity to attend a symposium, conference, or seminar, you must attend. Workshop is slightly different in its conducting manner because we have to discuss about the hands-on practices, and we have practical approach in this also. So, okay, in this discussion, the resolving of issues and the seeking of advice are the primary purpose of the conferences, which are big official gathering. People may confer with one another on the subject on this platform. Conferences often extend for many days and aim to accomplish several particular goals. There is a wide variety of conferences, including religious conferences, corporate conferences, media conferences, trade conferences, and academic conferences. So we are interested in the academic conferences because we are pursuing for our higher degree PhD. The purpose of an academic conference is to provide academics and researchers with a forum in which to present and debate the results of their work. On the other hand, a business conference is a meeting that focus on new development and prospects in the business world. So different conference allowed different kind of information, interactions, and ideas to be shared and discussed. But in some conferences, we are not allowed to speak. Audience cannot discuss about the agenda put in the conference. So what are the advantages and limitation you can see on this slide? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर थोड़ा सा आप हिंदी भी इस्तेमाल करें साथ में। हिंदी इस्तेमाल करें, हाँ but we have some international students also, they are not able to understand probably. नो सर, सभी है, हिंदी वाले भी है, इंटरनेशनल सब समझ जाएंगे। थोड़ी सी ठीक है, हिंदी में भी बोलेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि इट इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या तो कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कोई भी हिंदी इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड है, तो उसमें आप बड़े बड़े एकेडमिशियन से मिल सकते हैं और उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।
it will help you in decision making. Even you have developed the ability to problem solving. ठीक है, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस कर लोगे और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है. लाइक अगर हम नैनो मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं तो हम कैसे कैसे नैनो मटेरियल बना सकते हैं, कोई आसान अप्रोच है जिससे हम आराम से बना सकें. वी कैन सीक द कोलेबोरेशन आल्सो, है ना. तो वहां जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं हो सकता है वो आपको किसी काम में हेल्प करें. तो दिस इज नोन एज कोलेबोरेशन, एंड रिसर्च कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट द कोलेबोरेशन. So we can have a big team. If a big team is there, then certainly your work is going to be more and more expanded, and you can have a good quality international journal publication. That is the main aim of continuing this research. Organizational alignment and goal setting हम कर सकते हैं. Feedback and performance evaluation. ठीक है, कई सारी सेक्टर्स हैं हमारे जिनमें पीएचडी में वी हैव टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर एंड देन वी हैव टू सीक द फीडबैक and how these questionnaires are having the information, and using that we can do the evaluation through the performance. हमारे अगर कोई कहीं जॉब करता है तो उसके मोटिवेशन और उसको रिसर्च में अगर एंगेज करते हैं हम, तो इट इज द प्राइमरी मोटो ऑफ नाउ डेज कॉर्पोरेट सेक्टर. नॉलेज शेयरिंग एंड ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग. All these are the importance of the conference. तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. Now पर्पस ऑफ कॉन्फ्रेंस मीटिंग, हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, फिर भी केवल स्पेशल पर्सपेक्टिव फॉर द अटेंडिंग द एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फॉर स्टूडेंट्स. पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस कैन बी हाईली बेनिफिशियल, है ना, बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंड इट हैव मल्टीपल पर्पसेस. कौन कौन से पर्पस हैं? लर्निंग एंड एक्सपोजर. स्टूडेंट्स जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं उससे उनको लेटेस्ट रिसर्च, ट्रेंड्स और एडवांसमेंट के बारे में पता लगता है जिस फील्ड में वो स्टडी कर रहे हैं. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, वही कोलैबोरेशन की बात की थी हमने, वो कई सारे बच्चों से भी मिलते हैं. कनेक्ट विद पीयर्स मींस स्ट्रॉन्ग पर्सन्स इन देयर फील्ड, प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल्स और पोटेंशियल मेंटर्स से भी मिलते हैं. वो कई लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप उनके पास में जा रहे हैं तो दे कैन हेल्प यू टू अचीव योर रिसर्च ऑब्जेक्ट्स. प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हम सीखते हैं क्योंकि वहां पे स्टूडेंट प्रेजेंट करते हैं. दो तरह के प्रेजेंटेशन मेथड हैं, या तो हम पोस्टर प्रेजेंट करेंगे या ओरल प्रेजेंट करेंगे. तो दोनों में किसी में भी आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल. प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल रिसर्च को हम ये कह सकते हैं कि इट इज प्रोवाइडिंग दी अ वे टू लीड योर लाइफ, है ना. तो रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्फ्रेंसेस के पास मतलब हम जब अटेंड करने जाते हैं, देन इट ऑफर्स इंसाइट इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, बट इट इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ स्टडी एज वेल एज मेनी एक्सपोजर स्टूडेंट कैन रिसीव. रिज्यूम बिल्डिंग, आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी हैं, दिस इज लिस्टेड इन योर रिज्यूम आल्सो, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन if you are pursuing an academic career or whatever professional career you are going to have. It is useful. Exposure to diverse perspective. Conferences क्या करती हैं कि जितने भी individuals हैं, they are coming and meeting with each other, interact, so they share their experiences and various perspectives. Motivation and inspiration. एक्सपर्ट से अगर हम मिलते हैं तो उनको देख के हमें लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है या कोई बहुत बड़ा नोबल लॉरिएट है, इवन वी कैन इंटरेक्ट विद देम आल्सो. सो कटिंग एज रिसर्च से रिलेटेड हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है. अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिकेशन भी है. बहुत सारी कॉन्फ्रेंस है ना जो हमें पब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग या कुछ जर्नल्स में देती है. हालांकि आई वांट टू डिस्करेज यू टू नॉट टू पब्लिश इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, क्योंकि अगर आप अपना अच्छा काम किसी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में छपा देंगे जो कि आने वाले समय में आपको एक अच्छा जर्नल पब्लिकेशन दे सकता था, तो दैट विल बी ए लॉस. पर अगर अच्छे जर्नल में कहीं पब्लिकेशन हो रहा है कॉन्फ्रेंस में, तो दैट यू कैन गो थ्रू. फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, जो भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो हमें क्या है, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, है ना, उनके फीडबैक भी सुनने को मिलते हैं.
तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है हमें हमारी रिसर्च को मॉडिफाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए हेल्प करता है। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने अभी बोला कॉन्फ्रेंस में हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए अपना पेपर, है ना, पब्लिश हाँ, कर। बिल्कुल। क्या हम उसी पेपर को दूसरे जर्नल में पब्लिश नहीं करवा सकते? एक ही पेपर को एक ही जगह होना पड़ेगा ऐसा? नहीं, एक पेपर एक ही जगह हो सकता है, ये तो रूल है ना। इसीलिए हमें कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि मोस्टली कॉन्फ्रेंस जो है ना बहुत अच्छा रिव्यू सिस्टम नहीं रखती है, तो वो पेपर हमारा क्या है, लो क्वालिटी पब्लिश होके रह जाता है। अगर हम जर्नल में करते हैं तो हाई पीयर, हमारा अच्छा पीयर रिव्यू होगा, तो हमारे को बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और वट एवर वी कैन इनकॉर्पोरेट टू इम्प्रूव अवर पेपर, दैट विल बी बेनिफिशियल, जी है ना। इसलिए जर्नल पब्लिकेशन पे ही जाना है हमें। थैंक यू सर। ओके Sir, may I ask you a question? या Good प्लीज। morning, sir. मॉर्निंग। सर मैं ऐसे कह रही थी कि जैसे हमने कोई पेपर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अब हम चाहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं करना, आई मीन पब्लिश नहीं करना, हाँ हाँ तो उसी पेपर को, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ही टाइटल पे दो बार जगह नहीं हो सकता, हाँ हाँ हाँ। तो सर अगर उस कॉन्फ्रेंस में वो पेपर पब्लिश नहीं हुआ तो क्या वो दूसरी अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें वापस मतलब प्रेजेंट हो सकता है? नहीं, देखो, प्रेजेंटेशन तुमने करी है, तो अगर हम अब उस पेपर को नहीं छपा रहे हैं तो एटलीस्ट वी हैव टू सबमिट अवर एब्स्ट्रैक्ट टू पब्लिश इन दी कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट बुक। ठीक है, अगर कॉन्फ्रेंस की एब्स्ट्रैक्ट बुक में हमने छपा लिया उसको, तो उसको अच्छा। दोबारा प्रेजेंट करना संभव नहीं है। पर ऐसी सर अगर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं जो अलाउ करती हैं कि आप अपने पब्लिश्ड वर्क को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और सर अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं दिया है तो, क्योंकि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट के लिए भी अलग से मांगा था, तो हमने वो भी नहीं दिया, हमने तो केवल नहीं, प्रेजेंट किया है पेपर। बगैर एब्स्ट्रैक्ट के यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी कॉन्फ्रेंस। सर मैंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी अभी लास्ट, तमिलनाडु की थी वो, कोई एनजीओ था, उसकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया है उसके अंदर, और उन्होंने बोला कि मतलब चार्जेस थे उसमें, एब्स्ट्रैक्ट के अलग 1100 रुपए थे और पेपर के 2200 रुपए थे, है ना। अच्छा। तो वो कोई आईएसबीएन वगैरह कुछ भी नहीं आईएसबीएन दे रहे थे, बट वो पेपर उसके लिए पैसे मांग रहे थे, तो मैंने वो, मुझे मेरा क्या है, वो फर्स्ट पेपर था, तो मुझे वो उतना रिलेवेंट नहीं लगा था भाई, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैंने पेपर प्रेजेंट किया, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, बट अच्छा। मैंने मतलब पेपर प्रेजेंट किया है पीपीटी के थ्रू, बट मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं दिया है उसके अंदर। हाँ, तो ये तुम्हारी बोल रही पीपीटी वगैरह भी उनके पास तो होगी ना। हाँ जी, पीपीटी तो होगी। हाँ, और फिर तुमने बस केवल मतलब जस्ट टू सेव मनी वी हैव अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट No, एंड no, sir. No, just not for the save money, बस नो नो but नो। just because for the institution, क्योंकि मुझे ऐसा Yeah. लग रहा था अगर मैं 2200 रुपए दे रही हूँ या अगर 3000 भी दे रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि वो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, वो एक एनजीओ था, दैट्स वाई मैंने उसमें सिर्फ पैनी खर्च नहीं की, ये ये था। हाँ हाँ, ठीक है, पर ठीक है, तुमने पब्लिकेशन भी नहीं किया, तो दैट वर्क यू कैन कंसीडर फॉर पब्लिकेशन इन गुड जर्नल्स। बट सर मैम के केस में, जैसे आपने बोला एब्स्ट्रैक्ट हमें पहले देना पड़ता है, तो मैम के तो नहीं हुआ, उनने तो नहीं दिया, बट स्टिल शी हैज प्रेजेंटेड इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक ऐसे है, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ओके it is not allowed. Without submitting abstract, your participation is not considered. हाँ सर, एब्स्ट्रैक्ट तो मस्त है, उसको देख के ही वो अपना पेपर मंगवाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके हाँ जी बाद सर। वो पेपर मांगे तो आपकी इच्छा है कि आप उसे पब्लिश कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाह सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड नॉट टू सबमिट। ऑल राइट सर। सर एक क्वेश्चन है हम्म। सर, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में हमने पेपर प्रेजेंट कर दिया है, हाँ हाँ। एब्स्ट्रैक्ट भी दिया है, हम्म और पब्लिश नहीं हुआ उसमें, हम्म। सेम पेपर को सेम टाइटल से हम किसी दूसरे जगह पब्लिश करवा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं ना। अगर आप पब्लिश नहीं करवा रहे हैं तो वो आपका पब्लिकेशन ऑप्शन ओपन है। अदरवाइज अगर हम एक जगह पब्लिश करा के दूसरी जगह भी करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज सेल्फ प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म तो अवॉइड करना है हमें, अभी अपने पिछली कई सारी टॉक्स में सीखा होगा। जी बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है ना, तो पब्लिश करा सकते हैं।
जी ओके। तो सर दूसरी जगह अपन पब्लिश करवा सकते हैं अगर पहली जगह नहीं हुआ, बट दूसरी जगह हम प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। नहीं, है ना? प्रेजेंट भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छा, मैंने क्या कहा, कुछ कॉन्फ्रेंसेस आपके पब्लिश्ड वर्क को भी प्रेजेंट करना अलाउ करती है। अच्छा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई अच्छा। आपका जर्नल पब्लिकेशन है, कॉन्फ्रेंस ने आपको बुला लिया एज ए इनवाइटेड स्पीकर, यू कैन प्रेजेंट, बट it is always mandatory whatever published work we are going to present in that conference, it should be allowed with our new work also, है ना। मतलब हम क्या करें कि उसमें हमारा नया वर्क भी ऐड कर दें, ताकि लोगों को उस पुराने वर्क के साथ हमारा नया वर्क भी पता लग जाए, और अगर हमको उसमें कोई आइडियाज इनवाइट करने हो तो हम वो भी कर सकें। ओके सर, ठीक। ठीक है ना। हाँ सर, वो इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो पहले हाँ, वाले पब्लिश को करवाने दे या नहीं करने दे, वो बिल्कुल उस पे बिल्कुल। डिपेंड करता But mostly in case of keynote speakers and invited talk, they are presenting their earlier published work. है। ओके सर, Okay, but that ठीक। facility is given to only professionals, professors, and experts in the field, not to students. हाँ, because we are the only scholars Yeah, only. yeah. You are continuing for your work because you are not renowned in that field. That's why you are not allowed to present. ठीक है सर। ठीक। ठीक है, now नमस्ते सर। coming, हाँ जी। सर मेरा ये मैं हेमराज हूँ सर, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक तो ISBN की जो जनरल होती है उसमें हम पेपर छपवाते हैं, हाँ, या हाँ। फिर UGC कैडेट लिस्टेड की जो कोई भी होती है उसमें छपवाते, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कोई भी हिंदी डिपार्टमेंट होते हैं, या मैं हिंदी से हूँ सर, तो वो बुक संपादित करते हैं, एडिटेट करते हैं, उसमें भी अपना आलेख या आर्टिकल होता है, तो सर वो और इसका महत्व बराबर होता है या फिर उसमें कोई डिफरेंस होता है? देखो, बराबर होता है, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। अब देखो, कई सारे सब्जेक्ट्स में एल्सवेयर, स्प्रिंजर, विले, ये जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, इनमें कई पेपर पब्लिश नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हिंदी की बात करें, राजस्थानी की बात करें, सिंधी की बात करें, उर्दू की बात करें, तो इन जर्नल्स के पब्लिकेशंस कम अवेलेबल है ना, बहुत कम है। तो हम क्या है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में या कोई बुक में अगर चैप्टर भी छपाते हैं तो दैट विल बी इक्वली बेनिफिशियल। हाउएवर, जो हम बात करते हैं, जो आपने शायद पीछे की टॉक्स में सुना होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, API होते हैं ना, जी सर। तो ये दीज आर दी प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्शन एज ए फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो ये जो API है, हो सकता है उनके कम हो, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक नॉन पीयर रिव्यू जर्नल है, उसके API हमें मिलते हैं 10, पर एक पीयर रिव्यू जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बिलो 1 है, तो उसका जो है 15 नंबर मिलते हैं हमें। जिसका 1 से 2 के बीच में, उसके 20 नंबर मिलते हैं। ऐसे 2 से अबव 5 तक जितने हैं उनके 40 नंबर मिलते हैं हमें API में, है ना। तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू गेन दी API, सो यू आर गोइंग टू लूज API ओनली बाय पब्लिशिंग इन दी बुक, क्योंकि बुक चैप्टर के अगर वो लोकल लेवल की है तो 5 मार्क्स हैं, अगर वो नेशनल लेवल की है तो 10 मार्क्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की है तो 15 मार्क्स हैं, कोई ज्यादा फायदा नहीं है ना। सर एक और मैं बात जानना चाहता हूँ कि सर, एक तो मेरा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के बाद छपेगा वो ज्यादा है, या फिर उससे पहले मैं जब PG कर रहा था तब भी छपी है, चैप्टर सब छपे, तो उनमें कोई डिफरेंस सर? ओवरऑल कैरियर में दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, जो पहले भी छपे हैं और सारे बाद में भी छपेंगे। पर रिसर्च में तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो भी पब्लिकेशन है, दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर थीसिस। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, सर अभी आपने बोला आफ्टर रजिस्ट्रेशन, है ना? हाँ, हाँ। या आफ्टर ज्वाइनिंग सर? नहीं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सर ज्वाइनिंग तो हमारी हो चुकी सर। ज्वाइनिंग हो गई, पर अभी पब्लिकेशन कहाँ हुआ होगा? अभी तक तो आप लोग केवल कोर्स वर्क ही तो कर रहे हैं सर। तो अभी अगर हम करवाएं तो वो काउंट नहीं होगा? मतलब रिसर्च में इंटरप्रेट करना ना करना ही आपके गाइड पे डिपेंड करेगा फिर, है ना। कि सर हम अभी तक मींस रजिस्टर्ड नहीं है सर। हाँ, हम अभी तक रजिस्टर्ड मैम अपन तब होंगे जब हमारा टॉपिक फाइनल होगा, SRCD एग्जैक्टली, अपना एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। नहीं सर, एक्चुअली वो मैम ने बोला था आपकी JRF से SRF कन्वर्ट होगी जब 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे। हाँ, वो तो देखो, वो अपनी UGC CSIR की कंडीशन है।
तो सर अभी नहीं कराऊं मैं, काउंट नहीं होगा वो? सर बता दीजिए देखो, मैम, क्योंकि मेरे discuss- पीछे पड़ रही है। गाइड से बात करो और छपा लो। ठीक है सर। ठीक ओके, है, ये गाइड और स्टूडेंट के बीच का डिसीजन है, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, ओके। मुझे तो आज ही पता चला कि जेआरएफ वालों को एसआरएफ भी मिलता है। मिलता है ना, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, 2 जैसे साल हमने अगर आप अच्छा काम करते हैं और कम से कम एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन अगर आपका है या नेशनल, तो आपको कंटिन्यूटी जेआरएफ से एसआरएफ में प्रमोट कर दिया जाता है। एसआरएफ में आपकी फेलोशिप है 42,000 प्लस 9,000 समथिंग आपको उसका एचआरए का मिलता है। इट विल बी मोर देन 51,000, तो मोर देन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स, है ना? अच्छा अच्छा सर। पता नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन तब आ अब जाएगा आ वो। जाए। कई बार क्या होता है कि इनिशियली जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स वगैरह और सब कुछ जो है यूनिवर्सिटी सबमिट करती है, यूजीसी या सीएसआईआर, जहां से भी आपकी फेलोशिप है, तो इट विल यस टेक सर, टाइम। यूजीसी से। तो कोई बात नहीं, 5-6 महीने की इकट्ठी मिलेगी ना फेलोशिप, कोई नुकसान थोड़ी है हमारे जी जी, को। ठीक। चलिए तो है। So now coming to the seminar part of this presentation. Okay, this seminar is again derived from the Latin word, because nothing is derived from our Vedas. However, all research is derived from our Vedas. But this is derived from the word seminarium. इसका क्या मतलब होता है? We have to seed plant nursery breeding grounds. So just these seminars are especially purposeful for new researchers. अगर आप जाते हैं तो आपको कोई ऐसी चीज सीखने को मिलती है जो आप अपने रिसर्च में आगे यूज कर सकते हैं. So it is going to plant a seed in your brain. So basically, seminars are often held to facilitate the sharing of information or the raising of awareness on a certain topics. Because in seminars, detailed discussions are provided by the limited group of intellectuals like professionals, professors, scientists. And overall, the result of research or advanced study is presented through oral or written reports. In some seminars, students are also given this opportunity to present their work through oral presentation or poster presentation. वैसे जो पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मुझे लगता है कि ओरल प्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छा पोस्टर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ओरल प्रेजेंटेशन में एक टाइम लिमिट रहता है, 15 मिनट में आपको प्रेजेंट करना है या 10 मिनट में प्रेजेंट करना है. तो हमेशा आप पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए जाएं. एक पोस्टर में वो ही ग्रुप आएगा आपके पास जो आपके वर्क से इन्फ्लुएंस्ड होगा, आपकी वर्क की डायरेक्शन में काम करता होगा. तो उससे इंटरेक्शन अगर आपका अच्छा होगा तो यू आर गोइंग टू हैव गुड आइडियाज फॉर योर कमिंग रिसर्च. So coming to the characteristics of the seminar. बट सर कुछ ऐसे फील्ड भी है ना सर, जो मतलब हम पोस्टर से उसको शो नहीं कर सकते ना, साइकोलॉजी वगैरह में. क्यों? साइकोलॉजी में यू कैन हैव ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डिफरेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट फिगर्स एंड ऑल वैसा प्रेजेंट करना इज नॉट पॉसिबल ना. ठीक है, पर ओरली भी उसको डिस्कस करना मुश्किल तो पड़ता ही है. हाँ जी हाँ जी. तो कैसे करोगे प्रेजेंट फिर? सर वो ओरली करना पड़ेगा सर साइकोलॉजी में तो. नहीं, कर सकते हो पोस्टर प्रेजेंटेशन से भी, पर ओरल प्रेजेंटेशन देखो, ऑब्वियसली एवरीवन इज लिसनिंग, है ना? उसमें कोई 70-80 लोग हैं, कोई साइकोलॉजी के एक एक्सपेक्ट के पे काम कर रहा है, कोई दूसरे एक्सपेक्ट पे काम कर रहा है. इस तरीके से वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर. So they are not interested in presentation, and probably those who are interested because of their interference, they are also not able to understand. तो oral presentation में हम मिस कर जाते हैं. और oral में ऊपर खड़े खड़े हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि वहां जाके उन लोगों से बात कर लें जो हमारे वर्क में इंटरेस्टेड है डायरेक्टली. यस सर. हाँ, पर खैर बाद में जैसे टी टाइम, टी ब्रेक या कुछ लंच में यू कैन डिस्कस, है ना? पर पोस्टर्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल बिकॉज दे आर इंस्टॉल्ड आउटसाइड द सेमिनार प्रेमाइसिस, और जो बाहर लगे रहते हैं तो लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होके आगे बढ़ के बात करते रहते हैं. जी सर, थैंक यू. So during these seminars, subject matter specialists often talk about their perspectives and thoughts on a particular topic that may be interested
for you also with the attendees of the session. By doing so, they can raise people's awareness of the issue while also imparting some of the information they have gained to the community. So subject of discussion is of high intellectual level. So basically it is a oral form of communication we have also discussed. It may take place in a professional or commercial company also to discuss about their products, है ना. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करे तो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखा सकती है, उनको एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, हाँ. So just for promotion of the products, these kind of seminars can also be organized. But we are academic people, we are interested more in academics. That's why seminars are quite important for us for interacting with the highly educated and intellectual persons. So importance of seminar cannot be neglected for developing student understanding. अपने आप बच्चे सीखते हैं इसमें, है ना. कोई उनको सिखा थोड़ी रहा है, वो सामने ठीक है लेक्चर हो रहा है, अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम सुन सकते हो, अगर तुम्हारे रीजन का है या तुम्हारे फील्ड का है तो हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं. It also develops the analytical, organizational, communication and collaborative skills also. कोलेबरेटिव तो हम कर ही चुके हैं ना डिस्कस. हमेशा हमें कोलेबरेटिव अप्रोच को डेवलप करना है. विदाउट कोलेबरेटिव अप्रोच we are not going to have the full utilization of the seminar. पर कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल अगर कुछ प्रेजेंट कर रहा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन हिज और हर वर्क, तो हम क्या कर सकते हैं कि उससे बात करके उसकी पेपर्स वगैरह मांग सकते हैं, तो वो हमें मिल जाएंगे, है ना. वरना आजकल पेपर डाउनलोड करना कितना मुश्किल है, तुमने देखा होगा. whenever we sought for a particular paper, it is always tagged with few dollars price, है ना, यूरो, पॉन्ड. तो वो अगर हमारा इस तरीके से इंटरेक्शन होता है, इवन वी कैन इंटरेक्ट विद दी फॉरेन नेशंस आल्सो, तो उनसे भी बात करके हम वो सब निकाल सकते हैं. हालांकि विदेशों में ये सब कुछ फ्री है, इजीली यू कैन डाउनलोड द पेपर. और डाउनलोड करने के लिए एल्सवेयर, विले, स्प्रिंगर सभी का सब्सक्रिप्शन उन्होंने ले रखा है. University of Kota, we are also going to have the Scopus in few days, because I am also looking after the library, so I am trying to have this. Even Turnitin we are also trying to procure to avoid plagiarism in our journal publications, है ना. तो अब हम काफी कुछ कर सकेंगे. नाइस सर. ठीक है, तो लेट्स होप कि आपकी रिसर्च अच्छी रहेगी सबकी, है ना. So overall these are the advantages of the seminar. अब हम इतना सेमिनार के बारे में बात कर चुके हैं कि आइडियाज, openness of ideas, it is the most important advantage of seminar, because using this we can also work in the other direction that is not asked by our supervisor to discuss, है ना. वैसे हमको सुपरवाइजर को फॉलो करना है, ठीक है, एग्जैक्टली. पर कभी कभी देखो, सबके ब्रेन में अपना अपना दिमाग भी तो साइंटिस्ट है, सब अपने अपने लेवल के साइंटिस्ट हैं, तो थोड़ा कुछ अपना भी काम करना चाहिए, है ना. तो सेमिनार की लिमिटेशन है कि इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, नॉट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन ऑल कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट. हाँ बोलो सर. एक बात पूछ रही थी मुझे आपसे, ये जो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होती है, इनका थीम तो कुछ और होता है ना, और अपन पेपर है ना, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट में हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? मतलब थीम अलग, उनमें कोई कोरिलेट ही नहीं होता? नहीं, आजकल वैसे ऐसा हुआ है कि देखो, थीम ऐसी रख के चलते हैं ये लोग कि दे कैन एक्सेप्ट वाइड वैरायटी ऑफ पब्लिकेशंस, है ना. जैसे अच्छा. कि मान लीजिए हमने थीम रख दी किसी सेमिनार की फिजिक्स. अब फिजिक्स में तो थ्योरेटिकल फिजिक्स भी, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, उसके अलावा जो है बहुत सारे अदर फील्ड्स भी हैं, है ना. तो ये सब ठीक है. आजकल मैंने ऐसे ऐसे नाम देख लिए कि अगर फिजिक्स भी नहीं रखा ना, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस, अब इसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सब जा पा रहे हैं. एवरीवन कैन अटेंड एंड एवरीवन कैन प्रेजेंट देयर.
वर्क। अच्छा। और मोस्ट कॉमनली आजकल एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज और इस तरीके के कम्युनिकेशन रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये काफी हो गए हैं। तो लगभग एवरीथिंग कैन बी पुट इन द अम्ब्रेला ऑफ ए कॉन्फ्रेंस। काफी वाइड स्कोप है। यस सर, आजकल सारे इनोवेटिव लाइक सस्टेनेबल पे ही चल रहा है, पंजाब में भी, इवन इग्नू में हाँ, भी सारी यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल कर रही है। सर सस्टेनेबिलिटी पे तो आरयू ने भी करवाई है अभी, है ना? सर अभी अभी अपने कोटा में भी सब्जेक्ट है। है 15 हाँ। मार्च को है पंजाब में भी। हाँ। यस सर, सब सेम टॉपिक पे होता है कि सर सस्टेनेबिलिटी तो ऐसा हो बहुत जाता है। तो मतलब अब ये हम कह सकते हैं कि हम बात करते हैं ना कि रिसर्च की, एंड वी हैव क्लासिफाइड आवर सब्जेक्ट्स इन वेरियस कैटेगरीज लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। और साइंस में भी हमने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए हैं, साइकोलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग, है ना। इतना सब कुछ जो हमने किया है, बट इट इज गोइंग टू क्लब फाइनली एट द रिसर्च लेवल, है ना। अब देखो, हाँ जी। ज्योग्राफी इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम बिल्कुल फिजिक्स, सर। सब कुछ मैच करता है। अभी हम रिसर्च करते हैं तो पता है मुझे क्या फील आती है, आई एम ए केमिस्ट। यस सर। हाँ सर, वो आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हाँ, होने लग गई है इस वजह तो से। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, वैसे एज ए फिजिसिस्ट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी, हाँ है ना, सर। समझ में ही नहीं आती। तो अभी हमने वो कुछ कोर शेल नैनो पार्टिकल्स पे काम किया, उसमें हमने ई कोलाई डिटेक्शन पे काम किया। तो ई कोलाई के बारे में मुझे पढ़ना पड़ा, यस सर, बायो वाला है ना सर पूरा। सब सीखना पड़ता है। आप किसी भी चीज से अलग नहीं है। और आर्ट्स तो टोटली इनकॉर्पोरेट होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी राइटिंग एबिलिटी, एंड दीज ऑल कम्स अंडर द ह्यूमैनिटीज फील्ड, है ना, इंग्लिश है ना। सर हमारा मैनेजमेंट तो वैसे भी आर्ट्स भी है और साइंस भी है और प्रोफेशन भी हाँ, है। सब कुछ है, क्योंकि मैनेजमेंट Yes. में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आईटी, जी। सब कुछ आता है। सर फिर तो हमारा स्पोर्ट्स तो सर सारा एमबीबीएस वाला है सर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, है मेडिसिन पूरा एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट्स है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो इसलिए अब ऐसी कोई मतलब बाउंड्रीज नहीं है, आप आराम से किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड करके काम कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सर मैं ये टाइप्स, पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर आपने बोला भी किसी भी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में अपन पेपर पब्लिक किए बिना ही अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे तो उसी फील्ड में दूसरे काम करने वाले भी तो मान लो अपना पेपर पब्लिश नहीं हुआ तो उनको आइडिया मिल जाएगा, तो अपने से पहले वो वर्क कर सकते हैं उस पेपर नहीं पे, या फिर अपने। नहीं, आइडिया मिल जाएगा, वो अपने अलग तरीके से काम करेंगे। आपका जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है, आपने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके काम किया है, तो आपका पब्लिकेशन तो आपकी जगह रहेगा ही। और आप तो पहले से ही काम कर चुके हैं, वो तैयार मैन्युस्क्रिप्ट है आपके पास, आप जर्नल में डाल दें तत्काल ही। काय को इतना वेट कर रहे हैं कि दूसरा आदमी काम करे। तो फिर अपना मान पेपर पब्लिश नहीं हो उससे पहले अपन बाहर ले जाके शो कर रहे हैं कि अपन ने ये काम कर लिया, फिर तो अपने से पहले ही कुछ जाके पब्लिश करवा देगा फिर क्या तो। पता आपने सबमिट करने के बाद प्रेजेंट किया हो। ठीक अगर है ना, बिना ये सबमिट भी तो हो सकता है। बिना वो सबमिट किए मान लो नहीं आपने करना चाहिए सर, है जर्नल ना? में, इंटरनेशनल जर्नल में पहले से ही सबमिट कर रखा है, और आप उसको एक कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट भी करके आ गए, क्या बुराई है उसमें। तो सर मान लो अगर ऐसा नहीं कर रखा, सबमिट नहीं कर रखा है इंटरनेशनल तो जर्नल में और फिर पब्लिश उनके नहीं से करना आते ही चाहिए सर, सबमिट तो कर दें, काय को वेट कर रहे हैं कि दूसरा आदमी काम कर करा के, उसको टाइम तो लगेगा ना 2-3 महीने का। जी सर। ठीक है ना, वेट नहीं करें। अगर आप कुछ जी ऐसा सर। वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं जो अनपब्लिश्ड है, तो उसको तत्काल पब्लिश कराने का प्रयास करें। जैसे पब्लिकेशन जनरल में पब्लिकेशन में डालने के बाद ही फिर मान लो कॉन्फ्रेंस वगैरह में या सेमिनार में प्रेजेंट करना चाहिए अपने वर्क को। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप पहले भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, पेटेंट्स जो हैं, पेटेंट्स को जी तो हम सर। पहले से ही एक्सपोज कर देते हैं ना एक साइंटिफिक कम्युनिटी को। जी वो सर। पेटेंट्स पहले से ही देख लेते हैं, उसको पब्लिश करा ही नहीं सकते हम पेटेंट के वर्क को। तो पब्लिश करा जी दिया तो सर। वो पब्लिक वर्क हो गया, जी सर। है ना। इसीलिए पेटेंट्स में हम पहले से ही अपना वर्क एक्सपोज कर देते हैं साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के सामने, और जी सर। उसके बाद पब्लिश भी नहीं कराते। जैसे ऐसा कुछ पेटेंट में तो सर एग्रीमेंट होता है मान लो पहले कि अपन मान लो ये बाहर नहीं जाएगा, इस मान लो जो भी पेटेंट जो भी डिपार्टमेंट उनका बना हुआ है। हाँ, वो तो है, ठीक है, इसी वजह से तो हम उसे पब्लिश नहीं कराते हैं। जी सर।
है ना। वो एग्रीमेंट अगर हमने साइन नहीं किया हो तो हम तो पब्लिश भी करा के बैठ जाएं, पेटेंट भी करा के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है ना। जी सर। एक इंडिविजुअल का हो जाता है उसके ऊपर पेटेंट, है ना, इसीलिए हम उसे पब्लिश नहीं करा सकते। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेमिनार की बात करें हम तो देखो, मिनी सेमिनार जो हम लैब में या हमारे कॉलेज लेवल पर जो है हम कोई एक टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं क्लास में, दिस इज टर्म्ड एज मिनी सेमिनार। ऐसा सेमिनार तो सभी ने दे रखा होगा। मेन सेमिनार जो है कोई वो डिपार्टमेंटल लेवल पर हो और तुम्हारे सारे प्रोफेसर्स वगैरह भी उसे सुन रहे हो, like you are going to face in research. Every year you have to present your work and then yearly report is submitted to this research section. National seminar जो है वो किसी national level पर कोई association है that is going to organize. International seminars are also organized by international agency, like one example I have claimed, that is UNESCO. ठीक है, तो अब वर्कशॉप्स पे आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है किसी रिसर्चर के लिए वर्कशॉप को अटेंड करना। पर इस वर्कशॉप में हमारे पास कोई पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है, ना ही इस वर्कशॉप में हम कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप क्या है? वर्कशॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम एक दो वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो हम अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज गेन करने से रिलेटेड जो भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिकल मेजर्स हैं, उनको सीख सकते हैं। ठीक है, सो इन ए वर्कशॉप वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल विल शेयर एंड टीच ए न्यू टैलेंट to those individuals who will be attending this session are new to this field, है ना, वो लोग सब नए हैं इस फील्ड के लिए। जैसे अभी गोपाल सर ने हमें बताया 2 क्लास से पहले कि यहाँ पे कोटा में रनकपुरा या क्या है एक प्लेस है उनके कॉलेज, रानपुरा में। राइट मैम। तो सर लेकिन वो तो ऑनलाइन वाला मोड है उसका, तो उसका कुछ वेटेज होता है? बिकॉज वर्कशॉप में यू हैव टू बी प्रैक्टिकली, हमें कुछ करना पड़ता है ना, कुछ प्रोजेक्ट वर्क टाइप होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है वर्कशॉप में। हाँ, जैसे इक्विपमेंट्स हैं तुम उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं तो ऑनलाइन मोड अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कितना वेटेज, हमें क्या उसका मार्क्स क्या मिलेगा? नहीं क्यों, देखो अभी बात करते हैं हम कि अगर मान लो रिसर्च में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ इज कंसिडर्ड एज बेस्ट, है ना, और वो ग्राफ्स वगैरह अगर हम हमारे जर्नल्स में डालते हैं तो जर्नल पब्लिकेशन के चांस बढ़ते हैं और काफी अच्छा जर्नल पब्लिकेशन हो सकता है आपका गुड इम्पैक्ट फैक्टर के साथ, क्योंकि आजकल ये जो अपीलिंग चार्ट्स ग्राफ्स वगैरह हैं ये काफी डिमांड में है ना। तो आप ये जैसे ओरिजिन पे आपका कोई शायद अभी लेक्चर हुआ होगा, ओरिजिन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन अगर उसको देख रहे हो तो ऑनलाइन अगर आपके पास में ओरिजिन सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी है तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी वर्कशॉप्स आर ऑलवेज गुड टू अटेंड इंडिविजुअली, खुद जाके अटेंड करें ज्यादा अच्छा है, वरना ऑनलाइन अटेंड करने में हम उतना ज्यादा नहीं सीख सकते। आजकल आईआईटीज की साइट देखो तो उन साइट्स पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, हालांकि आजकल एक्सपेरिमेंट्स तो सब आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी पार्ट हो गया है, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑनलाइन सिखाते हैं ना, पर एक स्लाइड आइडिया तो मिल जाता है ना हमें कि इक्विपमेंट किस तरह का दिखता होगा और कैसे प्रोसीड करना है। तो आप कभी आगे कभी उस इक्विपमेंट के टच में आते हैं तो सीख तो सकते हैं। देखो ऑनलाइन जो है बस इसीलिए है कि you all are not required to gather at some place and then you can attend the seminars at your comfort of your home. सही है ना? मींस करना चाहिए, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनलाइन को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोरोना में तो ऑनलाइन ही हमारा सहारा था ना बस केवल, है ना। ठीक है सर। तो ऐसी कोई भी पैंडेमिक्स के केस में ऑनलाइन ऑप्शन इज द बेस्ट। ठीक है, so in the workshop we have to improve our individual skill of subject through practical experience, research and intensive studies. So a student may learn a variety of new topics in workshop and broaden the scope of their potential career by participating. So these workshops are beneficial when held in educational institutions, है ना, school, universities and other similar scientific institutions. You can discover workshops on very elementary topics like carpentry, fashion design, web design, Photoshop, exercises,
workouts and many more, and they are also beneficial in the online mode. ठीक है, तो हमें देखो वैसे वर्कशॉप अटेंड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर मान लो श्रीनगर में हो रही है और हम जा रहे हैं तो we have the vacation choices also, है ना? And if we are interested in astrophysics, astronomy, cosmology, then you are going to interact with the telescope and other astrophysical instruments by which you can see the planets, asteroids, black body, and many other objects available in the space. ठीक है, बस ये fascinating है, इसीलिए इसको लिखा है मैंने, है ना? To comprehend the way of researching, हमारा रिसर्च करने का तरीका, जैसे अगर मान लो तुमको कोई तुम्हारा सैंपल तुम डेवलप कर रहे हो, उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है और कहीं कोई वर्कशॉप हो रही है, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं हम इन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, वहां जाके देखते हैं तो हम वहां पे रिसर्चर्स से भी मिलते हैं, उसमें कैसे हमें मेजर करना है, कैसे हमें उस सैंपल के बारे में सब कुछ निकालना है, तो ये सब कुछ हम सीख लेते हैं, है ना? So purpose of workshop, if we are going to talk about this, it is a gathering in which group of people learn about something in depth. Okay, and our knowledge is getting improved in participating in these kind of workshops. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें लर्न करने के लिए। और यहाँ पर जो वर्कशॉप में लेक्चर देने वाले लोग होते हैं, दे कैन बी एकेडमिशियंस आल्सो, दे कैन बी साइंटिस्ट आल्सो, so they are expert in their field and they can also provide the hand-on practices on the equipments to the participants. Even participants जो है अपना आइडिया या जो भी कुछ उनके दिमाग में, they can express freely in these kind of workshops. One-to-one interaction is possible, है ना? और collectively हम किसी एक प्रॉब्लम को लेके उसको रिजॉल्व करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, है ना? अब टाइप्स ऑफ वर्कशॉप की बात करें तो ये भी बहुत तरीके हैं, है ना? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, इट कैन बी स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप, है ना? लाइक वी ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स. इवन if you are afraid of numerical problems available in the science, so there can be a problem solving workshop also. Technical workshop to have software and other hardware components, experiments, equipments, learning based. Creative arts workshop करता है ना कोई, पत्रिका, पेंटिंग, स्कल्पचर बच्चे अटेंड करने जाते हैं, समर कैंप्स, है ना? ये सब भी वर्कशॉप्स है. टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स, वैसे भी हम बात करते हैं कि सेमिनार में वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कोलैबोरेशन, लाइक दैट इन वर्कशॉप आल्सो वी कैन कोलैबोरेट विद देम and those who have that particular equipment that can be utilized, ठीक है, उसको भी उसकी हेल्प ले सकते हैं. हेल्थ एंड वेलनेस वर्कशॉप, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप, लीडरशिप वर्कशॉप, nowadays it is quite required. Everyone have this leadership ability, but through management skill they can help other people to develop this kind of tendency, as well as entrepreneur workshop. ये भी बहुत चल रही है आजकल कॉमर्स मैनेजमेंट में, तो है ना? Innovation workshop and many type of workshops are there. Okay, just you can read. I can put these slides with the research group, research department. You can also contact me. हमने अगर कोई पहले कोई वर्कशॉप अटेंड की तो उसके हमें कुछ मार्क्स या कुछ एडवांटेज मिलता है आगे एक्सपीरियंस को छोड़ के? सर जैसे पहले मैंने क्या कहा था कि रिज्यूमे स्ट्रांग हो रहा है तुम्हारा अगर तुम लोग जो है ये वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और ये सब अटेंड कर रहे हो, है ना? हाँ जी. जब रिज्यूमे स्ट्रांग हो रहा है हमारा, तो रिज्यूमे का पार्ट बन ही रहा है ये सब, तो फायदा ये सबसे बड़ा है, जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना? सर फायदा है, तो वर्कशॉप्स का भी फायदा है, बट यू कैन कैटेगराइज. देखो इसके अलावा एक होता है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट फॉर दैट यू हैव टू बी फैकल्टी इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है? वो अटेंड करने के एपीआई मार्क्स अच्छे 30-20, है ना? उसके अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं 15-15 दिन के, 20-20 दिन के, उनके भी मार्क्स अच्छे हैं, है ना? आजकल आदमी क्या है कि वो डेटा ओरिएंटेड हो गया है. अगर हमें फायदा नहीं है तो हम कुछ नहीं करना चाहते, है ना? सर सबसे पहली चीज है एडवांटेज.
तो अगर कुछ भी करने के हमें मार्क्स मिलते हैं और आने वाले समय में हमारा सीवी स्ट्रांग होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी सर। ठीक है, बाकी देखो मेरा सीवी स्ट्रांग है, 150 से ऊपर पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी है, नेशनल भी है, सब है ना। तो अगर तुम मेरा नाम सर्च करो गूगल पे तो सो मेनी पेजेस यू कैन सी, है ना। यस सर। यूनिवर्सिटी मिल भी सकते हो मुझसे कभी भी आके, है ना। नागार्जुन भवन में बैठता हूँ मैं। और तुम्हारा भी नाम अगर ऐसे गूगल पे सर्च करने पे मिले तो अंदर से थोड़ा ईगो बिल्ड होता है ना। यस सर। सर आई एम एन सर, वैसे भी मिल जाता है नाम तो, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। बढ़िया है, कीप इट अप। थैंक यू सर। ठीक है, तो आजकल क्या है, इंटरनेट से भी है हम सब, और इफ वी आर अवेलेबल ऑन गूगल तो थोड़ा सा आदमी प्राउड ही महसूस करता है अपने आप को, है ना। हालांकि अगर मुझसे मिलोगे तो मैं नहीं करता हूं, तुमको दिखेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डिफरेंट स्टाइल ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट इन कॉन्फ्रेंस। अगर अब हम यहाँ पे देखो, अभी तक केवल ये बात कर रहे थे कि हम अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है हमें करानी पड़ जाए कॉन्फ्रेंस। माना कि हमारा जो सुपरवाइजर है वो कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसकी सारी अरेंजमेंट्स तुम्हें तो करनी ही है ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट, है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इवेंट। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पे भी डिपेंड करता है कि पता लगे तुमने तो 100 चेयर जमा रखी हैं, 400 आ रहे हैं, है ना। तो दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। जो हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स को, किस कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स को बुला रहे हैं। अब मान लो तुम तो जैसे धीरू भाई, वो अभी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की प्री मैरिज वो अरेंजमेंट करा था, तो इट इज ए ग्रांड मीटिंग, है ना। तो उस ग्रांड मीटिंग के लिए किस तरह के 5 स्टार अरेंजमेंट होंगे वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है। आजकल कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी है ना, वो या तो बैंक्वेट हॉल या थिएटर्स में ऑर्गेनाइज की जा रही है बिकॉज ऑफ द लार्ज गैदरिंग, बट their dinner and everything, lunch etc is managed in 5-star hotels, even stay also, if you are going to have good fund. अगर फंड नहीं है हमारे पास में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये थिएटर स्टाइल है, देख लो, है ना। ये सीटिंग की बात कर रहे हैं हम। क्लासरूम स्टाइल भी हो सकता है, इफ कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्मॉल गैदरिंग, यू शेप और हॉलो स्क्वायर, दिस इज a kind of conference that may be arranged for media personnel. प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना इसको। कोई इंस्टीट्यूट या कोई बड़ा कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस करता है। सेमिनार्स में राउंड टेबल अरेंजमेंट इस तरह का तुमने देखा ही होगा। ये कैबरे स्टाइल, मतलब इसमें क्या है कि बस फ्रंट पे जो हमारा प्रेजेंटर रहेगा और इस तरीके से हमारी सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, तो टेबल पर हमारे खाने पीने के स्नैक्स वगैरह सब आते रहते हैं। आदमी खाने पीने में ज्यादा व्यस्त रहता है, सामने वाले पे ध्यान नहीं देता, है ना। इनफॉर्मल सीटिंग, घर में भी हम एक सेमिनार कर सकते हैं, हाँ। वर्कशॉप के लिए इट शुड बी, वर्कशॉप के लिए जो भी हमारा इंस्ट्रक्टर है, इंटेलेक्चुअल है, जो हमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस वगैरह सिखाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए हम क्लस्टर सीटिंग या फिश बॉल सेटअप रखते हैं, जिससे कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे और अपना प्रेजेंटेशन जो दे वो सभी के लिए इक्वली विजिबल हो, है ना। बोर्ड रूम स्टाइल भी हो सकता है, चारों तरफ है, इधर बीच में वो खड़ा होके सामने प्रेजेंटेशन लगा के वो एक्सप्लेन करे। कोई अगर एक्सपेरिमेंट है तो उसको भी वहां सामने रख के डेमोन्स्ट्रेट करे, उसके ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस करे, सभी के लिए कंफर्टेबल करे लर्निंग। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंस पे। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या है देखो। ये अब हम वैसे भी कॉन्फ्रेंस भी सुन लिया हमने, सेमिनार भी सुन लिया, वर्कशॉप भी सुन लिया। एक छोटा सा आइडिया तो लग ही गया है कि वर्कशॉप तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस है, सेमिनार में एक आदमी आके भाषण दे रहा है, हम भी अपना अपना दे सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो लार्ज गैदरिंग के लिए हैं, उसमें कोई बोल भी रहा है तो दैट विल बी ए की नोट स्पीकर एंड अदर्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक, है ना। ये डिफरेंस तो है ही। But all these events are for information sharing. Whatever topics covered, especially in seminars, they can be industry or academic specific.
and they help participants to better their research, personal or professional life. In workshop, hands-on practices are there, practical knowledge is provided, है ना. और अगर हम उस एक्सपर्ट के जिस भी हम फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं उस एरिया की एक्सपर्टाइज भी हम अपने अंदर भी चाहते हैं तो हम वर्कशॉप अटेंड करके वो सब सीख सकते हैं. कॉन्फ्रेंस इज जस्ट अ डिस्कशन, ओके, दैट मे और मे नॉट नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग. उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड नहीं होता है. यू मस्ट ऑर्गेनाइज और पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस. करना चाहिए. If you are a leader of the company or you are just the learner, just we have to increase fresh ideas. We have to inculcate fresh ideas in our juniors also. Junior मतलब जो हमसे बाद में ज्वाइन किए हुए हैं. If we are leader, these are the decision table. You can read it. I will leave these slides with the research department. Okay. So this is the detailed difference. Formats are different. Their seating arrangements are different. We have seen. So basically, most important for a PhD student, workshops, because it provides the hands-on exercises and it focuses on debating issues of importance. In workshops, we can also try to find a solution to a specific issue. Seminars are organized to raise people's level of knowledge and provide a forum for information exchange. Okay, you can read this also. Format is different, goals are different. A conference is a defined type of assembly in which participants consult and talk on the range of subjects. It does not Sir, have. आपका previous वाला slide दिखाइए एक मिनट. हाँ. Versus वाला थोड़ा सा difference read. हाँ, difference. ये शेयर करूंगा मैं रिसर्च डिपार्टमेंट को, तो आप आराम से पढ़ें. हाँ ठीक है सर, है ना. प्लीज. वैसे तो मैं ये टेबल ही रखता केवल, पर हाँ ये जी, हाँ जी. बच्चों की वजह से मैंने थोड़ा डिटेल्ड भी रख दिया, है ना. एटलीस्ट वी आर एबल टू हैव डिफरेंशिएशन इन बिटवीन दीज थ्री कंपोनेंट्स, है ना. Symposium is a small conference, we have already discussed. So components are 4, but we are discussing in the form of 3 only. हमें खुद को नहीं पता था जब हम PhD करते थे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है बस, यही याद रहता था. और जहां वर्कशॉप लिखा होता था कि पता नहीं ये कॉन्फ्रेंस क्यों कह रहे हैं, इसको कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कहते, हमें कोई बताने वाला नहीं था, है ना. अच्छा, आजकल तो UGC ने ये कोर्स वर्क चालू कर दिया, तो एटलीस्ट यू हैव प्री नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स. हाँ जी सर. ठीक है, ठीक है. तो इसमें नहीं जा रहे हम ज्यादा. हम हमारे टोन ऑफ कम्युनिकेशन, बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, ऑल 3 आर प्लान्ड, है ना. अगर वो बच्चे से हैं, स्टूडेंट्स हैं, PG स्टूडेंट्स हैं या PhD स्टूडेंट्स हैं इनिशियल ईयर्स में, तो उनके लिए हमें वर्कशॉप प्लान करनी है. इफ दे आर वर्किंग इन देयर 3rd or 4th years of the research, then seminar and conferences can be arranged for them. It is also duration dependent, है ना. सेमिनार्स का ड्यूरेशन 2-3 days से ज्यादा नहीं होता है ना. और छोटा सा भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है. वो मिनी सेमिनार जैसे हम क्लास में स्पीक कर रहे हैं 15 मिनट का भी हो सकता है. वर्कशॉप जो है वो 7-8 दिन की होती हैं. रिफ्रेशर कोर्स भी काइंड ऑफ वर्कशॉप्स होती हैं, 15-15 दिन की भी हो सकते हैं. कॉन्फ्रेंसेस सबसे बड़ी हो सकती हैं, महीनों की भी हो सकती हैं, सालों की भी हो सकती हैं. ठीक है, डिपेंडिंग कि ऑर्गेनाइजर्स कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, है ना. ज्यादा आगे निकल गया मैं. अच्छा, अब इस पे भी आ जाते हैं. चलो, अब मैंने क्या बात की थी कि अगर वो जो सीटिंग अरेंजमेंट हमने इसलिए देखा था कि वी हैव टू ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स. एक में तीनों में से कोई सी भी ऑर्गेनाइज करनी हो, अगर ऑर्गेनाइज करनी हो तो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फॉर दैट वी रिक्वायर फंडिंग आल्सो. फॉर फंडिंग देयर आर सो मेनी, वो मैंने लास्ट में रखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. ग्रांट्स कहाँ से रिसीव कर सकते हैं. UGC देती है, DST देती है, ऐसी बहुत सारी फंडिंग एजेंसी हैं जो 50% ऑफ द ग्रांट देती हैं. रेस्ट 50% यू हैव टू अरेंज फ्रॉम स्पॉन्सर्स एंड योर इंस्टीट्यूशन और योर कंपनी, है ना.
So organizing institute is an important entity in planning, executing and managing seminars, conference, workshops. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो उसके पास में वो सारे इक्विपमेंट्स भी तो होनी चाहिए जिन पे वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएगा। तो इसलिए वर्कशॉप्स आर ऑर्गेनाइज बाय गुड इंस्टीट्यूट्स दो have possess so many equipments and they have lot of facilities। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो पर्पस एंड गोल वी मस्ट हैव फर्म ऑन दीज ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना देते हैं, उसका जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दिस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैव टू कॉन्टेक्ट विद इनवाइटेड स्पीकर्स, है ना, कि कौन कौन वहां पे स्पीक करेगा, कौन कौन लेक्चर देने आएगा और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, किस यूनिवर्सिटी के लोगों को इनवाइट करना है, और ये सब कुछ प्लान करते हैं। फिर उसके बाद बजट प्लानिंग करनी चाहिए हमें कि हम सबको लंच करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, हमारे पास पैसा है कि नहीं है, इतना जेब से तो लगा के कोई नहीं करना चाहता ना ये सब कुछ। रजिस्ट्रेशन फीस क्या लेनी है हमें, कितनी स्पॉन्सरशिप किस किस से लेनी है, कहाँ से ग्रांट अट्रैक्ट करनी है, सब कुछ हमें डिसाइड करना पड़ता है। साथ ही साथ वेन्यू सिलेक्शन, क्या पता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ पे तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो वहां पर इतना बड़ा स्पेस ना हो, देन वी हैव टू लुक फॉर बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, and we have to arrange the chairs, table, etc. to for the participants to sit, audio visual equipments, है ना, catering options, खाना पीना जो भी खिलाना है उनके लिए, है ना, speakers, content development को भी हमें invited speakers से contact करना है, उनको request करना है कि we will arrange the TADA for you as well as you are going to be look after properly boarding, lodging arrangement and everything you have to do। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए फिर हमें क्या ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करना पड़ेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा डेवलप करना पड़ेगा बच्चे की या जो भी पार्टिसिपेंट्स आना चाह रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके। मनी इज मेन कंसर्न इन दिस ऑल। मार्केटिंग एंड प्रमोशन इज नाउअडेज क्वाइट इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सरशिप की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। सारे लॉजिस्टिक ऑपरेशंस तो ये एक आदमी कर नहीं सकता ना, इसलिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई जाती है कि जो लोगों के लिए हम एकोमोडेशन अरेंज करेंगे, अगर वो हमारे प्रीमाइसेस में है तो वो पैदल भी आ सकता है, नहीं तो ट्रांसपोर्ट अरेंज करना पड़ेगा, ऑन साइट सपोर्ट देना पड़ेगा उसको। रेलवे स्टेशन पे आ गया वो तो कैसे आएगा, वहां के लिए भी टैक्सी वगैरह अरेंज करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, है ना। पूरे इवेंट डे ऑपरेशन का प्लान करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, साइनेजेस, अटेंडी असिस्टेंस वगैरह सब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद द इंक्रीज टेक्नोलॉजी नाउअडेज इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। हमें एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी सब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसका कोई यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करो या फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराओ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या क्या, वो सब तुमको डिसाइड करना है। हर चीज को थिंक थ्रू द प्रोसेस। हमारे एक बॉस थे वो कहते थे थिंक थ्रू द प्रोसेस, कैसे कैसे प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में सोचें, इवेल्युएट करें और उसको इम्प्रूव करते जाएं। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे थिंक थ्रू द प्रोसेस तो हर काम आसान होता जाएगा। किस तरीके से हमें कैसे काम करना है वो सब देखना पड़ेगा। टोटल फॉलो अप एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब हमारे यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो उसको कंडक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स भी पार्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं है ना। जैसे सर हम यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट्स करते थे तो डिफरेंट लाइक आप रिसेप्शन कमेटी हैं, आप ऐसे ही बिल्कुल होता है। देखो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी तो उसमें से एक पर्सन को हमने रजिस्ट्रेशन का इंचार्ज बना दिया, वो अपने साथ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ले लेगा और वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हेल्प करेंगे उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट जरूरी है। एकोमोडेशन के लिए भी सब चाहिए, वरना गिनती के फैकल्टी मेंबर तो एक डिपार्टमेंट में 10 से ज्यादा होने नहीं है, वो सब क्या क्या कर लेंगे। इसलिए बच्चों का सपोर्ट बहुत जरूरी है और बच्चों को भी इससे सीखने को मिलता है, करना चाहिए जी सर। और रिसर्च स्कॉलर सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं इस काम के लिए। तो सर सारे डिपार्टमेंट्स को ऐसे कॉन्फ्रेंस कराने का मौका मिलता है या फिर जैसे अभी मैनेजमेंट करा रहे हैं या फिर आईटी वालों को ही मिलता है, सबको मिलता है? मौका मिलता नहीं है, मौका लेना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लीडरशिप क्वालिटी, है ना। हमारे डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा, लीड करना पड़ता है ना। अगर तुम्हारे हेड या तुम्हारे प्रोफेसर
नहीं करना चाहता है रिकमेंड करेगा, बेकार काम है ना, तो नहीं होगा। ओके सर, हाँ जी सर, तो ये लीड करने के लिए बच्चे भी एंकरेज कर सकते हैं, बिल्कुल सर। है ना। हाँ सर जैसे है ना, हम जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, और उसमें हम भी हमारा मतलब एक रोल दे रहे हैं, मतलब हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो सर क्या वो चीज़ भी हमारे एपीआई में ऐड होगी? नहीं, तुम जो काम कर रहे हो वो एपीआई में ऐड नहीं होगी, लेकिन हाँ रिज्यूमे में ऐड होगी। अच्छा, ठीक है, तुम ये कर सकते हो, लेकिन वी वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट नेशनल सेमिनार, अच्छा, है ना, ये कर सकते हो ऐड। पर हो सकता है कि उस कॉन्फ्रेंस में तुमने भी अपना एक पब्लिकेशन दिया या प्रेजेंटेशन किया, तो उसके मार्क्स है एपीआई में। एपीआई का क्या मतलब है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये एकेडमिक्स को ही पॉइंट्स देता है, एफर्ट्स को नहीं देता। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट्स करें ही नहीं, वो हमारे फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले हमारे लीडरशिप क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो स्किल्स ही होगी हमारी, मतलब हम सीखेंगे ही ऑब्वियसली हाँ बहुत हाँ कुछ। हाँ, तुम लिख सकते हो ना अपने स्किल वाले पार्ट में कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आल्सो, है ना। तो आजकल जॉब सीकर्स को चाहिए, ये सब उनके पास होना चाहिए। तो जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनको भी ये चाहिए कि मतलब जो भी हम कैंडिडेट ले रहे हैं वो वर्सेटाइल है, बहुत सारे काम कर सकता है ना। ठीक है सर। इसलिए ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, मैंने भी लास्ट मंथ एक वर्कशॉप अटेंड की थी। हाँ, आरयू में जो वर्कशॉप चल रही थी ना रिसर्च की, वो की थी मैंने। बट सर वो क्या रिसर्च के पर्पस से अच्छी है, मतलब मैंने तो सीखने के लिए की थी, एपीआई और वगैरह ये सब चीज़ का नहीं पता था कि उसके मार्क्स वगैरह भी जुड़ते हैं। बट सर क्या मार्क्स जुड़ते हैं क्या उसके हमारे हाँ रिसर्च जुड़ते हैं एक्सपीरियंस में? ना। देखो, तुमने जो भी कुछ वर्कशॉप अटेंड करी, ये सब कुछ एपीआई में ऐड होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए बस हमारे पास। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ओवरऑल कुछ भी अटेंड करते हो दैट विल बी बेनिफिशियल, पर ऐसा ना हो जाए कि हम अटेंड ही करते रह जाएं, रिसर्च पीछे छूट जाए कहीं। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, साल की 3-4 इवेंट अटेंड कर लो बस, बहुत है। नहीं सर, एक्चुअली क्या है, मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे सीखने के लिए ही की थी रिसर्च, सीखा ही था बस। हाँ, कोई नहीं, ऐसे ही प्रोग्रेस करती है नॉलेज, और क्या है। और अगर हम बाहर जाके कुछ करते हैं ना तो कुछ ज्यादा सीखने को मिलता है। अभी देखो, मेरे साथ 10 बच्चे पीएचडी कर चुके हैं। 2-4 बच्चे इतने इंट्रोवर्ट थे कि उनको कहीं भी बाहर जाने में बहुत डर लगता था, तो उनके मम्मी पापा साथ जाते थे या कोई भाई भाई साथ जाता था। वो सब बच्चे पीएचडी करके दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और जो बच्चे इन्वॉल्व होते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे, बाहर जाना पसंद करते थे, मतलब अकेले या दुकेले जाने से मतलब नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं होने चाहिए, है ना, वहां इंटरेक्ट करते थे तो उनके अच्छे कोलेबोरेशन है। कई लोगों ने तो वहां जॉब ज्वाइन कर लिए जहां जहां वो काम करके आए। वन ऑफ माय स्टूडेंट इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई में उसने बहुत काम किया, और यही उसने अपनी इमेज बिल्ड करी। और आईआईटी में सेलेक्ट होना आसान काम होता है क्या, बताओ? नहीं सर, डिफिकल्ट होता है। हाँ, सर एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक है, बट आई वांट टू आस्क, है ना सर। लाइक मैंने 6 साल पहले एक यूनेस्को ब्रिटिश काउंसिल ने कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो कॉन्फ्रेंस 6-7 दिन की थी, उसको अटेंड किया था। अभी उसका अगर कुछ इसका भी मार्क्स मिलेगा क्या सर, पीएचडी? क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। नहीं, पीएचडी में नहीं मिलेगा, पर जब तुम जॉब करने जाओगे तो एपीआई में काउंट होगा ये तुम्हारे, है ना। ओके सर, और कुछ भी अटेंड करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो वेग है, इट इज यूजफुल ऑलवेज, है ना। हर कुछ काम अटेंड करो इसलिए, पर 3-4 इवेंट से ज्यादा अटेंड मत करो, वरना पीएचडी पीछे रह जाने वाली है ना। सर इसके आज पता है बेनिफिशियल आज पता चले कॉन्फ्रेंस के सेमिनार के, अब मैं भी अटेंड करूंगी।
हाँ, नहीं करना चाहिए। चाहे हाँ। पब्लिश कराओ चाहे मत कराओ, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक काम है वो तुमने 10 जर्नल में सबमिट किया, कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोई भी, इसका मतलब बहुत अच्छा काम नहीं है या लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, दो ही बातें हो सकती हैं। जी तो सर। उस तरह के काम को कॉन्फ्रेंस में छपा लो। हाँ, तो अगर नेशनल ऐसा ही कॉन्फ्रेंस है। उसमें छपाते हो तो एपीआई तुमको 7 मार्क्स मिलते हैं, अगर इंटरनेशनल में छपाते हो तो 10 मिलते हैं। कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह के पब्लिकेशन में, है ना। हम्म। ठीक है, तो अभी इसलिए सर कोई कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट आया हुआ है ना अपने कॉलेज में, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आई हुई है, सॉरी सर। आई हुई है, अच्छा। किस 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 डिपार्टमेंट में आई है? अभी कुछ हिंदी की दिन चल रही पहले है, हिंदी की चल सर रही वो है। गोपाल सर करवा रहे हैं सर, वर्कशॉप है सर। हाँ हाँ, हिंदी में वर्कशॉप है वो, बढ़िया है सर वो हिंदी। हिंदी की जो वर्कशॉप है वो हिंदी वाले बच्चे ही अटेंड नहीं, करेंगे? अटेंड सब कर सकते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट करो, उसमें कोई खराबी नहीं है, बट ज्यादा यूजफुल हिंदी वालों के लिए, है ना। अच्छा सर। ठीक है ना। तो कोई मतलब हर कुछ इम्पोर्टेंट है, बट इट डिपेंड्स कि योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट वर्कशॉप और वट एवर इवेंट, है ना। तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है? जैसे हिंदी भी अगर तुम जाके अटेंड करते हो और सीखने के हिसाब से करते हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ लूज करके आने वाले हैं या टाइम खराब कर रहे हैं। जी सर, क्लास में जाने से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो टीचर का मान लो पढ़ाया वो कुछ भी समझ में नहीं आता हो, होते हैं ऐसे भी, है ना। कई बार हमारा हिस्सा ट्यूनिंग नहीं बैठती है, पर फिर भी वहां जाके एटलीस्ट हमको बैठ के ऐसा तो फील आता है ना जब हम बुक उठाते हैं हाथ में कि कुछ तो बोला था टीचर ने, है ना। तो ऐसा कुछ भी इतना खराब नहीं होता है ना। जी। अब जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। इसको बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है, इसकी एक एक पॉइंट्स को कंसीडर करना है ना। कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, सब बातें हमने डिस्कस करी है, पोस्टर तक को डिस्कस किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसर्चर के लिए। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप क्या होती हैं, वो सब चीजें तो हम आगे भी पढ़ के सीख सकते हैं, और बहुत कुछ तो मैंने तुम्हारे ऊपर भी छोड़ दिया है कि तुम ये पढ़ लेना, है ना। पर इस एक एक स्लाइड को अपन बहुत कस के डिस्कस करने वाले। प्रेजेंटेशंस इन कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार लिख रहा हूं क्योंकि वर्कशॉप में तो हमें अलाउ ही नहीं होता प्रेजेंट करना, है ना। तो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो अल्टरनेटिव मींस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से मींस हैं? पहला है कीनोट टॉक, हम नहीं दे सकते क्योंकि हम उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, पर आने वाले समय में तुम लोग भी एक्सपर्ट होने वाले हो, कीनोट टॉक दे सकते हो, है ना। इनवाइटेड टॉक्स, ये भी कोई प्रोफेसर साइंटिस्ट ही देगा और अपना पुराना वर्क प्रेजेंट करेगा। कीनोट टॉक भी ऐसी होती हैं, पर उनका जो पुराना वर्क भी होता है ना, मतलब हम रिसर्चर के लिए वो कुछ इस तरह का होता है कि हम उससे सीख के अपने नए वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कीनोट टॉक्स और इनवाइटेड टॉक्स जरूर सुननी चाहिए। अब आ गए ओरल प्रेजेंटेशन। तो ओरल प्रेजेंटेशन में ये हमारे जैसा कोई रिसर्चर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है क्योंकि ऐसे कई सेशन पैरेलली चल सकते हैं कि एक जगह पे एक सेशन चल रहा है, दूसरी जगह पे दूसरा चल रहा है, तो सेम टाइम पे दो ओरल प्रेजेंटेशन हो रही हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन आजकल कॉन्फ्रेंसेस में मोर देन 100 तक होने लग गया है ना। तो वो 100 से ज्यादा है तो कैसे मैनेज करेंगे? 25 को एक ग्रुप कर दिया, 25 का एक ग्रुप कर दिया, है ना। अलग अलग रूम में 10 to 5 चल रही है प्रेजेंटेशंस। अब तुमको सेलेक्ट करना है कि कौन सी में तुम्हें इंटरेस्ट है, उसको अटेंड करना है। तो वो तो पूरे अटेंड कर लिए हमने कि नोट टॉक्स और इनवाइटेड टॉक्स। ओरल प्रेजेंटेशन जो हमारे इंटरेस्ट के हैं उनको अटेंड करें हम। पोस्टर्स तो सब बाहर लगे पड़े हैं, हर को देख सकते हो। जो हमारे काम के नहीं भी हैं उनको देख के एक आइडिया तो मिल सकता है कि हम कैसे पोस्टर बनाएं, है ना। तो सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस की जो हम बात कर रहे थे, in these presentations are very important, but all presentations are not treated in equal fitting, है ना। तो इसमें अगर हम कॉन्फ्रेंस में अगर हम पब्लिकेशन करते हैं, some conferences intending the participant to submit full paper, but most often an abstract, ये तो होता ही होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट तो करना ही करना है। कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट के अलावा दे आर आल्सो एंकरेजिंग participants to submit extended abstract. It contains the graphical image and conclusion of your paper also. But
when full papers are submitted, these are normally published in the conference proceeding. That we need to avoid, क्योंकि हमारा अच्छा काम proceeding में छप गया तो it is going to be a waste. Nowadays, most conference proceedings are distributed in electronic formats. है ना, हमको पेन ड्राइव पकड़ा देंगे या CD दे देंगे. But this we need to discourage because all conferences are not having the strong peer review systems. है ना, एक कारण ये भी है कि हम उसमें ना छपाएं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में, और एक कारण ये भी है कि हम अपना पेपर जो अच्छा हम किसी जर्नल में छाप सकते थे उसको छपा के बैठ गए तो हम उसे छाप नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस conference proceeding publication is also treated as publication, and if you are going to publish it at somewhere else, then it is going to be plagiarism. सेल्फ प्लेगरिज्म कहते हैं हम इसको, है ना, अपना कंटेंट कॉपी करके उसको रीपब्लिश करना, ये सेल्फ प्लेगरिज्म कहलाता है. एंड दैट प्लेगरिज्म इज अलाउड अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, है ना. थीसिस में हमने बात की ना कि इट शुड बी स्मॉलर देन 10%. ऐसा है ना, इंडिया में यूजीसी ये परमिट करती है. तो 10% से कम क्यों होना है? क्योंकि हमारा नाम, हमारा डिपार्टमेंट का एड्रेस, ये सब चीजें भी तो प्लेगरिज्म हो रहा है ना. बार बार तुम वही लिख रहे हो अपना नाम, और बार बार तुम वही डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लिख रहे हो, है ना. तो ये भी प्लेगरिज्म है. इसीलिए 10% तक अलाउड है, मतलब बाकी कंटेंट इज सोली रिटन बाय यू. पर इसमें भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वो पकड़ता है प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, लाइक आर्टिकल्स ए एंड डी, है ना. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे फर्दर मोर, हेंस फोर्थ, जो हम मैन्युस्क्रिप्ट्स में और थीसिस में काफी ज्यादा यूज करते हैं. तो दैट कंपोनेंट इज एक्सक्लूडेड एंड दैट इज कन्फाइंड इन द लास्ट बैरियर ऑफ 10%. पर 10 से ऊपर जाता है तो हमें कम करना पड़ेगा, है ना. तो नाउ कमिंग टू दी टॉक्स, प्रेजेंटेशन की बात करें हम तो सबसे पहले आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग विजुअल प्रेजेंटेशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे हम विजुअल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? ये कीनोट स्पीकर भी हो सकता है, ये इनवाइटेड टॉक भी हो सकती है, ये ओरल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है ना. तो हमें किस तरीके से इसको तैयार करना है वो हमें सीखना है. लाइक मैथमेटिशियंस, वी आर नॉट हैव द चॉक एंड टॉक, है ना, कि ब्लैक बोर्ड दे दो हमें, हम सारा सॉल्व करके दिखा देंगे एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द प्रेजेंटेशन. Nowadays, all conference presentations are accompanied by slides. ये जैसे मैंने स्लाइड बनाई है ऐसी तुम्हें भी बनानी है. इसको प्रिपेयर करने के लिए पावर पॉइंट एक अच्छा ऑप्शन है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है ना. उसके अलावा लेटेक्स भी हम यूज कर सकते हैं, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे PDF, अबोर्ड, एक्रोबेट भी हमें ऑप्शन देता है प्रेजेंटेशन का तैयार करने का. सो दिस visual material should be carefully prepared to convey the key ideas. Effectively हमें convey करना है. तो सबसे पहले हमें आइडिया लेना पड़ेगा what kind of audience is attending our presentation. ठीक है, सबसे पहले हमको ये पता करना है, are they specialist of your field? If they are not, then you have to prepare the background of the research on which you are working. So prepare the presentation with the typical person in the audience in mind. हमें पता नहीं है कि कॉमर्स वाला भी अटेंड कर रहा हो, तो हमें पूरा बैकग्राउंड और इनिशियल सब कुछ देना है उस स्लाइड में, जिससे कि आप उसको अट्रैक्ट कर सको अपनी टॉक के लिए. ठीक है, टिपिकल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस आर ऑफ 15 to 20 minutes ओनली. सेमिनार टॉक्स जो होती हैं वो 30 minutes तक भी एक्सटेंडेड हो सकती हैं. इनवाइटेड टॉक्स जो हैं 1 घंटे की भी होती हैं, 1 घंटे से ज्यादा भी होती हैं, जैसे आज की 1 घंटे से ज्यादा है ना. तो हमको उसके हिसाब से अपनी स्लाइड्स तैयार करनी है. तो वी हैव टू मैनेज स्लाइड्स एज पर टाइम ड्यूरेशन गिवन. दिस इज द सेकंड पॉइंट टू प्रिपेयर द स्लाइड्स इफेक्टिवली. सबसे पहली जो स्लाइड है, इट शुड कंटेन द टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटर्स नेम एंड एफिलिएशंस. सेकेंड शुड हैव द प्लान ऑफ द टॉक्स, है ना, जैसे मैंने दिया था वैसे का वैसा. इससे क्या है कि पता रहता है कि हमें कि टॉक में क्या क्या है. एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड in that particular talk, then you can leave and attend another talk.
but in case of keynote and invited talk you have to attend fully. oral presentation में हम skip कर सकते हैं इस तरीके से, है ना. ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि describe the background knowledge briefly so that your work is put in perspective. Clearly present the questions, है ना. जो भी क्वेश्चंस जिनके आंसर हमने इस वर्क में फाइंड करने के लिए प्रयास किया है तो वो हम उन क्वेश्चंस को बताएं. मेथड ऑफ टेस्टिंग ईच हाइपोथेसिस वी हैव टू आल्सो डिस्कस. हमें अपने रिजल्ट इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं कि जो ऑडियंस है वो उसी कंक्लूजन पे पहुंचे जिस पे हम पहुंचे हुए हैं. ठीक है. एंड फॉर दिस से इट इन पिक्चर इमेजेस टू सपोर्ट द कंटेंट्स. ठीक है. इमेजेस वगैरह हमें दिखानी चाहिए. ग्राफ्स जो हैं ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, है ना. टेबल से ज्यादा अच्छा करते हैं. टेबल्स को रीड करना मुश्किल होता है. मोस्ट स्लाइड्स शुड बी डोमिनेटेड बाय इमेजेस. बहुत कम वर्ड्स होने चाहिए उसके ऊपर, है ना. यू शुड नॉट टाइप इन एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू से. जितने भी की पॉइंट्स हैं वो हमें बुलेट्स की फॉर्म में लिखने चाहिए, है ना. ट्राइंग टू लिमिट योरसेल्फ no more than about 4 to 5 major bullet points. Do not write blocks of text. बड़ा बड़ा नहीं लिखना है ना. Each slide should have one main idea, है ना. जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग विजुअल प्रेजेंटेशन, हम बात कर रहे हैं केवल एक बड़ा आइडिया आना चाहिए एक स्लाइड के ऊपर. Do not fill the slides with images, text. Allows some white spaces. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रंगीन कर दें हम उसको, है ना. मतलब वो डिजाइन टेम्पलेट हो सकता है कलरफुल, पर ऐसा नहीं कि सारी इमेजेस और टेक्स्ट ही भर दिया हमने. कुछ व्हाइट स्पेस खाली भी छोड़ो जिससे कि लोगों को खाली खाली भी दिखे. ज्यादा भरा भरा तो कुछ कंजेस्टेड हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता दिखने में. अच्छे फॉन्ट यूज करो, बड़े फॉन्ट यूज करो, अच्छे ढंग से प्रेजेंट होने के बाद कोई भी उसको देख सके, है ना. फिर है यूज डिजाइन टेम्पलेट फॉर कंसिस्टेंसी. सब जगह पे एक ही जैसा डिजाइन टेम्पलेट यूज करना है तुम्हारे को, जिससे कि लोगों को अलग अलग सी अपीलिंग ना हो और कुछ गड़बड़ सा ना दिखे, है ना. इन द प्रोजेक्शन द कलर मे नॉट लुक द सेम. अच्छा. लिमिट द यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, है ना. कई लोग दिखाते हैं ना एनिमेशन है, एक टेक्स्ट एक की लाइन आ रही है, एक जा रही है ना. वो वैसे नहीं होना चाहिए. स्पेशल इफेक्ट इन स्लाइड ट्रांजिशंस टेंड टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस अवे फ्रॉम व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे, सो दैट शुड बी अवॉइडेड. डू नॉट गेट लॉस्ट इन डिटेल्स. बहुत ज्यादा बोलते रहो और एक ही चीज को डिस्कस करते रहो, वो भी खराब है. डाउन प्ले द स्पेसिफिक्स and emphasize the important issues of your work. ठीक है. उन्हीं को डिस्कस करना है हमें और उस पे जो आइडियाज या क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको आंसर करना है हमें, है ना. ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछे तो तुमको इरिटेशन हो जाए और तुम नाराज होके उसको आई डोंट वांट टू टेल ऐसे कह दो. प्लान स्लाइड्स इन सच ए वे दैट यू डू नॉट नीड टू गो बैक एंड फोर्थ. ऐसा नहीं करना है हमें. अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे को कोई इक्वेशन या ग्राफ दोबारा भी काम आने वाली है तो रीराइट दैट, रिप्रोड्यूस दैट इन कमिंग स्लाइड, पर पीछे नहीं जाना है हमें, है ना. ठीक है. कभी आगे पीछे चलना पड़े वैसा नहीं करना है. अब आ गया, ये तो तुमने प्रेजेंट करने के लिए तैयार तो कर लिया है. हाउ टू डिलीवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. So even if slides are well prepared, the success of presentation is depending upon how you present it. Interact with your audience. ठीक है. क्या रिकमेंडेशन है अब देखो. अडॉप्ट ए कन्वर्सेशनल टोन. इस तरीके से प्रेजेंट करो कि ऐसा लगे कि आपस में हम बात कर रहे हैं, ना. और सबसे पहले तो ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट, डोंट गेट नर्वस and allow you to connect with your audience. During the presentation, do not read slides. Talk to audience, answer their question, है ना. फिर सेकंड है speak slowly, clearly and loud enough. ठीक है. कॉन्फ्रेंस में क्या है कि सारे के सारे लोग आपके स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन से परिचित भी नहीं है ना. आप कैसे बोलते हो तो स्लो स्लो बोलो जिससे कि सबको सब कुछ समझ में आए.
क्लियरली और लाउड क्यों, जिससे कि पीछे पीछे बैठे हुए जो ऑडियंस हैं दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड. ओके, ट्राई टू अराउज इंटरेस्ट. डू नॉट ट्राई टू टेल देम एवरीथिंग दैट यू हैव डन. सब कुछ तुमने कर लिया ऐसा नहीं है. दुनिया में सब लोग कर रहे हैं काम. दे आर आल्सो इंटेलिजेंट, दे आर आल्सो वर्किंग. केवल आप अकेले नहीं है जो कि ये काम कर रहे हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल विद इन दी टाइम अलाउड, है ना, क्योंकि हम सब कुछ जो कर चुके हैं वो सब बोल दें ये संभव भी नहीं है. ठीक है, ट्राई टू अराउज इंटरेस्ट इन योर वर्क सो दैट द की इश्यूज convey the big picture and at least you spell out the take home message. बच्चे घर जाके बात तो करें कि हाँ ये कुछ था. ऑडियंस ऐसे तो सोचे कि कुछ समझ में आया. यूटिलाइज द क्वेश्चन एंड आंसर टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी, है ना. क्वेश्चन सुनो, आंसर करो. एंगेजमेंट अपना हमको प्रॉपर रखना है ऑडियंस के साथ में. उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है. डो नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना है ना. इफ यू डोंट हैव आंसर एडमिट इट. मान लो कि हमें नहीं पता, आगे बता देंगे. ठीक है. डू नॉट लूज योर कंपोजर. इफ यू आर चैलेंज्ड और अटैक्ड, रिस्पॉन्ड कर्टियसली. ठीक है, ज्यादा गुस्से में नहीं आ रहा है, इरिटेट नहीं होना है ना. एवरी PhD स्टूडेंट शुड ट्राई टू मेक एटलीस्ट वन कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन. जरूरी है विद इन द पीरियड ऑफ डॉक्टरल रिसर्च. इट विल establish a good confidence in scholar. ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है ये. अब अगर हम बात कर लें कि किस्मत से अगर हम ओरल प्रेजेंटेशन भी देना चाहते थे और हमको मौका नहीं मिल पाया, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनने हमको पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो अब क्या करें. पोस्टर तो बनाना हमें अच्छा लगता नहीं, उस पर खड़ा कौन रहेगा, हम भाग जाएं. इन सब से बचना है. हमें खड़ा रहना है वहां पर और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन को इनवाइट करना है. ठीक है, ग्रेट लेंथ ऑफ इंटरेक्शन करने से भी बचना है. वो कैसे करना है वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. देखो, अब इसको पोस्टर को सबसे पहले बनाने की बात आती है. जैसे हमने टॉक के लिए स्लाइड्स को डेवलप किया, तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हमें अगर पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए कर देती हैं तो हमें क्या करना है. In order for the poster presentation to be more effective, it should be well designed, है ना. पर पोस्टर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है हर कॉन्फ्रेंस सेमिनार में. उस फॉर्मेट को हमें अडेयर करना है. We already know that no one is going to read the whole poster. पूरा तो कोई पढ़ेगा नहीं. हमें खड़ा रहना है उसके सामने और हमारा पोस्टर ऐसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए कि इट कैच द आई फ्रॉम द डिस्टेंस. बहुत दूर से देख के भी कोई अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ ये इतना सुंदर सा पोस्टर बनाया हुआ है क्या, उससे रिलेटेड हो चाहे ना हो, वो आ तो जाए आपके पास. पर क्या है कि हम उसको ज्यादा बताने भी ना लग जाए कि पता चले कि हम उसको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और जो हमारे पोस्टर में एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है वो दूर से देखे कि डिस्कशन चल ही रहा है, बीच में जाके क्या करूंगा सुन के, और वो अवॉइड कर दे सुनना, है ना. तो we have to limit it to the allowed size of poster that we have already discussed. Text जो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 1.5 मीटर डिस्टेंस से it should be readable. Poster should be dominated by graphs, charts and similar pictures. बुलेट्स में बाकी हम सब लिख ही रहे हैं. सर, जो हम हमारी स्लाइड्स में जो पिक्चर्स वगैरह अगर ऐड करें तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर ऐसे ही रहने दें, वो देखकर समझ जाएंगे? नहीं, एक्सप्लेन तो करना पड़ता है. पिक्चर्स वगैरह भी एक्सप्लेन करनी है ना. पिक्चर्स को एक्सप्लेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है. जी सर, है ना. उससे ये पता लगता है ना कि बच्चा केवल टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा और एक बड़ा सा ब्लॉक टेक्स्ट का ना रखा हुआ है उसने. बुलेट पॉइंट्स को तो वो पढ़ के फिर भी एक्सप्लेन कर लेगा, पर ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है. वो तभी अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम खुद उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, है ना. जी सर. तो अब ये जो पोस्टर प्रेजेंटेशन है, अब देखो ये पोस्टर बना तो दिया हमने, प्रेजेंट भी करना है उसको. प्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द होल आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग ए पोस्टर टू अट्रैक्ट पीपल एंड टू हैव ए फ्रूटफुल इंटरेक्शन. इंटरेक्शन फ्रूटफुल होगा तो हमें नए आइडियाज मिलेंगे. नए आइडियाज मिलेंगे तो हम अपने वर्क को भी इंप्रूव कर सकते हैं.
अब देखो इस पोस्टर प्रेजेंटेशन में तो आइडिया तो लोग ले सकते हैं हमसे, है ना। एक क्वेश्चन आया था ना अभी बीच में कि अगर आइडिया ले गया और उसने काम करके छाप दिया तो हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं है, अगर वो आइडिया भी लेता है तो वो अपने तरीके से उसे अचीव करेगा, है ना। तो हमने तो जैसे जो जो मेजरमेंट्स कर रखे हैं, प्रोबेबली उसको अप्रोच ही ना हो वो सब मेजरमेंट्स, है ना। और अगर हो भी तो वो करेगा तो उसका अलग स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन होगा। सिमिलर काइंड ऑफ वर्क्स आर आल्सो पब्लिश्ड। तुम खुद भी देख लो, तुम्हारी फील्ड में जो तुम काम कर रहे हो उस तरह के काम हो रखे हैं ना। शायद कई लोग इसीलिए रिसर्च को रिसर्च कहते हैं, बिकॉज यस इट सर, इज बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे जैसे जैसे स्पोर्ट्स में जनरली होते हैं सर, सिमिलर फील्ड में सिमिलर लगते हैं इवन सर कि हमारा हाँ। वर्क है, बट हम स्लाइटली डिफरेंस होता है स्पोर्ट्स में, ऐसा ही होता है। पर सबका वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है, इसलिए वो अलग होता है। यस बस सर। तो ये ध्यान रखना है हमें, कोई हमारा आइडिया चुरा नहीं सकता, कोई हमारा दिमाग हमसे नहीं ले जा सकता। वो सब जो हमारे पास है वो सब वैसे का वैसा ही रहने वाला है ना। सो फाइनली प्रिपेयर ए ब्रीफ आउटलाइन टू बी प्रेजेंटेड इन 3-4 मिनट्स। ठीक है, कई लोग तुम्हारे पोस्टर को देख के भी तो आ जाएंगे, अरे बड़ा सुंदर बनाया है, कैसे बनाया है, बात करने आ जाएंगे। तुम 3-4 मिनट में अपने ब्रीफ आउटलाइन जो तुम्हें कंक्लूजन में बोलना है वो बोल दो उसको, ताकि वो 3-4 मिनट में चला जाए और जो आदमी इंटरेस्टेड हो वो ही आए तुम्हारे पास में, है। और उससे इंटरेक्शन करके हमें ज्यादा फायदा है, कोलैबोरेशन सीख कर सकते हैं हम, उसकी हेल्प ले सकते हैं फॉर फर्दर वर्क, है ना। तो हमें मेनली जो है पोस्टर में मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ग्राफ्स और इक्वेशंस को प्रेजेंट करना है। प्राइम कंक्लूजन ऑफ योर वर्क यू हैव टू एस्टेब्लिश फर्दर डिटेल्स इफ लिसनर शो इंटरेस्ट एंड आस्क क्वेश्चंस, है ना। अगर उसको मजा आ रहा है, वो तुमसे और बात कर रहा है, तो तुम उसको वो भी बताते रहो। साथ में एक लैपटॉप भी रखो अपने पास में, अगर जरूरत पड़े कि कुछ दिखाना हो उसको कि मैंने ये भी कर रखा है, देखो ये इस तरीके से होगा, बट हमने पोस्टर में नहीं दिया बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन का मैंने वैसे ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड वर्कशॉप पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। ये डिफरेंट था, पर इसमें मैंने देखा है कि बच्चों को बड़ी समस्या आती है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। और आई होप कि इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, है ना। अब ये ग्रांट फंडिंग की हम जो बात कर रहे थे, फाइनेंशियल ग्रांट्स जो हम कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप के लिए, देखो कहाँ से AICTE देती है, पर इट प्रोवाइड्स द ग्रांट इम्पोर्टेंटली ओनली फॉर टेक्निकल पर्सन्स। इंजीनियरिंग कॉलेज या BTech, MTech जो कर रहे हैं, उसके बाद में जो PhD कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR भी ग्रांट देती है, ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड DST भी देती है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी देती है, ICMR देती है, ये मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च को। आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड DRDO प्रोवाइड करता है, बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस BRNS, है ना। मैंने भी प्रोजेक्ट कराए हैं इसके, UGC के भी कराए हैं, DST के भी कराए हैं। मेरे साथ 3 वुमेन साइंटिस्ट काम करके गई हैं। कोटा की फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट मेरे पास ही थी, वो आजकल IISc में साइंटिस्ट है ना। तो देखो बच्चे अपने कैलिबर से कहाँ कहाँ आ जाते हैं। देखो एक बच्ची IIT मुंबई चली गई और हम कोटा विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं। देखो एक बच्ची IISc में चली गई और हम तो यहीं बैठे हैं, है ना। मैथमेटिक्स के लिए ग्रांट देता है NBHM, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट और फॉरेस्ट रिलेटेड वर्क के लिए ग्रांट देते हैं। एनर्जी आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलर एनर्जी की बात हम सब कर ही रहे हैं। ये मैनेजमेंट, कॉमर्स, फिजिसिस्ट, इंजीनियर सबको ग्रांट देता है MNRE। तो ग्रांट के लिए भी बहुत कुछ है। सो फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस, है ना। थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir, and welcome. Thank you, sir. थैंक यू। तो कुछ फायदा होगा Thank you, sir. उम्मीद करता हूँ, और ये स्लाइड तो मैं शेयर कर दूंगा डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च को, है ना। Okay, sir. थैंक यू जी सर। सर, जी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये मेरा कैमरा चालू होने के बाद मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहे नहीं सर। दिख रहे सर, आपके No, तो दर्शन sir. ही नहीं हुए। स्नैप कैमरा क्यों दिखा रहा है ये मुझे? कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से इस गूगल मीट में, है? आपका दर्शन नहीं हुआ सर हमको शुरू से लेकर अब तक। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं।
ये वैसे दर्शन दर्शन है, मेरा कैमरा ऑन पड़ा है लेकिन यहाँ पे आज का व्याख्यान बहुत ही सुंदर रहा। सुंदर रहा। अच्छा, बढ़िया, फायदा होना चाहिए सबको। सर अभी हिंदी के वो वर्कशॉप की बात कर रहे थे, कहाँ पे हो रही है वो? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में वो IRPCM की हो रही है ना सर? हाँ 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 वही। जय मिनेश में हो रही है वर्कशॉप तो? नहीं, जय मिनेश में तो अलग हो रही है। जेएमएस में तो वो क्वेश्चन एयर पे हो रही है। यहाँ हिंदी में हो रही है। अगर तुम देखो, मैं एक मिनट, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं शेयर करता हूँ। यानी ग्रुप पे तो जैसे IRPCM की तो आ रखी है, इनोवेटिव रिसर्च एंड प्रैक्टिकल्स इन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। अच्छा, नहीं लेकिन ये है, एक और भी हो रही है ये। तो हिंदी में जो भी बच्चे हैं वो अटेंड जरूर करें आज। अच्छा, मुझे लगता है वो कल में ही खत्म हो गई है। ओह, वो तो खत्म हो गई फिर सर। हो गई है खत्म। कोई बात नहीं, सुशील शर्मा जी हैं हमारे उसके कन्वेनर, उनसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। देखो मैं दिखा देता हूँ, अभी मिल गई है मुझे। हाँ दिखाइए सर। शेयर करने का प्रयास। देखो 12 मार्च को थी। यस सर, विजिबल। यस सर। ना याद तो था, पर क्या है कि वो मतलब मैं पता सब रखता हूँ लेकिन हिंदी मेरे समझ में नहीं आती, अटेंड करने नहीं गया। सर ये हिंदी के दुर्भाग्य की बात है। हाँ, कि हिंदुस्तानी लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे। हाँ सर। हिंदी टफ बहुत है ना? सर हिंदी टफ नहीं है, हिंदी को टफ हमने बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। नहीं सर, जिसे जो भी मतलब इम्पोर्टेंट इश्यू, हमारी इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, रिसर्च का पार्ट है, जो भी है उसको हम इंग्लिश में करते जा रहे हैं, जबकि सब कुछ तो उससे हमारा क्या है कि हिंदी क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े, जब आगे जाके पढ़ना हमें इंग्लिश में, जब हमें सोर्स सारे इंग्लिश में मिलेंगे तो फिर हिंदी को क्यों पढ़े? सबसे बड़ी डिफिकल्ट बात है सोर्स की सर। जो सोर्स है वो सारे के सारे इंग्लिश में मिलते हैं। अभी देखो हमारे साइंस में तो बिल्कुल भी जो है ना, मतलब हिंदी में कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ यही तो बात है सर, इसीलिए मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने 1 या 2 शोध पेपर हिंदी में छापें। मतलब वो बायलैंग्वेज हो सकते हैं लेकिन वो बड़े उपयोगी होते हैं सर। देखो मैं हिंदी के प्रमोशन के लिए मैंने बहुत काम किया। मैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़ा हुआ हूँ। एक क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, उस बुक्स को, शिव की बुक है, उसको हिंदी ट्रांसलेट करने में 2-3 चैप्टर मैंने लिखे। हाँ यही सर, जिसे कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट बुक चाहिए हमें, चाहे वो साइंस की हो या फिर कॉमर्स की हो, मतलब आज में भी हमें हिस्ट्री की कोई भी बुक चाहिए तो वो हमें इंग्लिश में मिलती है या फिर वो अनुवादित होती है, तो उसमें अनुवादित में हम वो क्या है, टेक्स्ट का इश्यू भी रहता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हिंदी लिखना और हिंदी के पब्लिकेशन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में और साइंस में इतने मुश्किल हो गए हैं कि छापे ही नहीं छपते हमसे। यही तो बात है सर। नहीं सर, लिखने में मैं हेल्प कर सकती हूँ। मतलब मैं हिंदी के प्रमोशन के लिए इतना मतलब हूँ कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खूब प्रयास करती हूँ लेकिन लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते। ये तो सर दुर्भाग्य की बात ही है। हम तो पढ़ना चाहते हैं सर, हिंदी में लाओ आप मैटर। अरे साइंस वालों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जो है ना इंग्लिश में पढ़ के आए हैं।
नहीं सर, ये हमारा भ्रम है। जैसे राजस्थान के आप देख लो, अधिकांश इंग्लिश में गया है ना, इसीलिए अगर हिंदी मीडियम ही रहता असूलों में भी तो सब हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो, मैं बीएससी तक हिंदी मीडियम था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है ना। एमएससी में आके मैंने बहुत विरोध किया है कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा। सेम हियर सर। खूब विरोध करके भी इंग्लिश में करना पड़ा, क्योंकि